First of all, I would like to thank Upajivika Foundation that you have given us an opportunity to meet on this platform online. You have given us a very good way or a medium so we can connect with the students, those who are interested in IIT, JEE, NEET or GATE, and they could get an information regarding how we should approach, what is the syllabus, and many of the things are there in their mind. हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच करना है, कैसे जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है. There is an informative, we can say, session that we have to conduct today, and through this session students will absolutely get an idea कि कैसे अप्रोच करना है हम लोग को आईआईटी, जेई, नीट, या फिर कैसे क्रैक करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होता है, क्या होता है, वो हम लोग को देखना है. So let us start with 9th 10th standard. What happens in 9th 10th standard? I am actually not conducting a session, guys. I can say that today I am conducting a story कि हम लोग के बच्चों का कैसे होता है, लाइफ का स्पैन क्या चलता है अभी तक, और हम लोग को क्या सहन करना पड़ता है 11th 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा हम लोग बोलेंगे. Let us say we have started our journey from first standard, and also reaching 8th standard is not a big deal. Okay, 9th and 10th, basically there are many boards like CBSE बोर्ड होता है, ICSE होता है, SSC होता है, इंटरनेशनल बोर्ड होता है, बोलेंगे बहुत सारे बोर्ड्स हैं हम लोग के यहाँ पे. सब लोग का सिलेबस अलग अलग है, डिफरेंट है बेसिकली. Then if we see basically in 9th and 10th standard how it is, the syllabus is like we have to learn most of the things we have to mug up, and then we have to write in the exams. Like most of the subjects are not we can say knowledge gaining. It is like रट्टोफाई, यार मगअप करो और एग्जाम के लिए जाओ, ऐसे ही प्रिपेयर करके और एग्जाम में पूरा सब जाके लिख दो. ऐसा काइंड का हम लोग का सिलेबस 9th और 10th का अभी तक तो डिजाइन किया है. एनईपी में तो नहीं मालूम, एनईपी में बोलते हैं कि नया कुछ तो होगा, देखेंगे, वो तो बात की बात है. Now, this was the study pattern till 9th and 10th. Basically 9th and 10th is important, so I'm focusing on that. 9th and 10th में हम लोग मैथ्स को सीरियसली थोड़ा सा लेते हैं. साइंस के तो बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं कि साइंस का न्यूमेरिकल है भाई, हाउ कैन वी क्रैक दिस, आई एम नॉट गेटिंग द concepts, and they leave the numerical or they keep the subject apart, and what they do is just mug up the theory, go to the exams and write the paper. Also in SSC I think there is a best of 5 pattern in which भाई 5 सब्जेक्ट का हम लोग को स्कोर देखेंगे, कंसीडर करेंगे, बेस्ट ऑफ 5 और परसेंटेज अच्छा मिल जाता है. This is the scenario till 9th and 10th standard. Okay, now what happens in 11th standard? 11th standard is a bigger jump, we can say. जब 10 से बच्चे बाहर आते हैं ना, तो 11th स्टैंडर्ड में तो हम लोग को तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या होता है दैट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड दे गेट एन हॉलीडे ऑफ 2 to 3 months, 5 months, 4 months, anything depends upon their board, depends upon the results that they are displaying, and the amount of time they are getting before the admission takes place. Now here is the main loophole. We are getting a holiday now. In pandemic situation there is an holiday for a lot of time, but we can say generally we are getting a holiday in these days. Admission process चलता है, result आता है, तब तक बच्चे तो एकदम रिलैक्स से हनीमून पीरियड में चलता रहता है सब कुछ. आफ्टर दैट दे आर अवेक, हाँ हम लोग का एडमिशन हो गया है, लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस, how to approach, but the students are not getting exactly what we have to do, and they are just known that yeah there is a field called engineering, there is a field called doctor. After giving this, after giving that, we don't know after giving which exam we have to crack, which exam, and we will get we will go in which colleges or which exams to give, and to crack which exam we are entering in which field. So today we are discussing this. Today we are discussing about the 11th and 12th standard basically, and after some time we will be discussing about the GATE, what is GATE, and how can we enter various fields by giving the GATE exam. So before starting myself, I am Tejas Godke. As Samir sir has introduced you, I have completed my Bachelor's of Engineering from Mumbai University, as well as Masters of Engineering from Mumbai University as well. I have more than 8 years or 10 years of experience in teaching IIT based competitive exams. We can say NEET based competitive exams. Also teaching engineering subjects for mechanical branch especially. Now व्हाट वी कैन से इज, देखो जब हम लोग 11th 12th में जाते हैं तो पता ही नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों को कि जेई क्या है, नीट क्या है, कौन सा एग्जाम लेके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या मिलेगा, एंड वी डोंट नो एक्सेट्रा 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 थिंग्स.
how to approach the subjects, which subjects have to be taken, which subjects are not to be taken, what are the options available. So we will go through this first. In 11th standard, basically after 11th standard there are many fields that we can approach. Not only the parents and the students are thinking that भाई दो ही फील्ड है जिंदगी में, एक है हम लोग का इंजीनियरिंग और एक है हम लोग का डॉक्टर. बेसिकली दैट आर द मेन फील्ड दैट वी कैन अप्रोच. इससे छोड़ के भी बहुत सारे फील्ड्स हम लोग के, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग के पास अवेलेबल है अभी ये टाइम पे. But we are just taking the part side. We are not discussing about that. We are discussing about how to approach JEE and NEET. Okay. Now we can say in 11th standard, as we think, the syllabus is not that easy, guys. Please mind this. Syllabus is not that easy. Like 10th standard and 9th standard, we are going to just read the textbooks and we are going to solve the questions which are given below the textbooks, and we will crack the exams, or we will crack the board exam, secure a 90% score in exams. No, that is a very wrong concept that people, students or parents have, that just reading the textbooks or reference books it is enough to get into the boards and securing बहुत अच्छे परसेंट आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है. That is not the fact. So what we have to do in this phase, how to approach these subjects. First of all, in your 11th and 12th standard you will be facing three main subjects who are giving engineering. Let us say they are facing physics, chemistry and maths. Okay, physics, chemistry and maths. Physics, chemistry and maths in detail we can see you are learning for let us say 2 years. I am specially a physics faculty in my academy, so I can say that physics को सिखाने के लिए, खाली physics अगर हम लोग को in detail सिखाना है या फिर physics को complete करना है thoroughly, then it will take a minimum 350 to 400 hours to just complete the physics syllabus in 2 years. So see the number of hours that you have to study for only physics. I am telling about only physics. So similarly we can take the math subject, similarly we can take the chemistry subject. सबको अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम लगता है, उतना ही डेडिकेशन लगता है, उतना ही मेहनत लगता है सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए और उसके साथ हम लोग को स्कोर करने के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से पीसीएम, ये हम लोग का कोर सब्जेक्ट है. क्या इतना ही सब्जेक्ट है 11th 12th स्टैंडर्ड में? बहुत सारे क्लासेस क्या करते हैं, यही सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा करके फोकस करते हैं. नो, PCM is not the only subjects who are taking engineering. They can total we have to give 6 subjects, right? PCM है, फिर इंग्लिश आएगा आपका एक मेन सब्जेक्ट, फिर CS1 and CS2. If you are approaching engineering core branch, that is you are not taking biology. I am talking only for engineering guys. It is PCM, physics, chemistry, maths, English, and let us say हम लोग का कंप्यूटर साइंस 1, कंप्यूटर साइंस 2 होता है, या फिर दूसरे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं. IT होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. बट which are the main subjects? We can say PCM is the main subject, but not only we have to focus on PCM, but also these subjects also, because these subjects also give us a boosting score in 12th standard board, which is equally important for entering or giving the JEE mains exam. Now for NEET students, the subjects are, we can say PCB, that is physics, chemistry, maths. Sorry, physics, chemistry and bio. Instead of maths, you can approach geography, and the another subjects are English and Marathi. So there's 6 subjects will be physics, chemistry, biology, geography, Marathi and English. Okay, these are the 6 subjects. I generally prefer that if you are a NEET aspirant, we can say, then generally focus on PCB only. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन लोग को डिसाइडेड ही नहीं होता है कि हम लोग को क्या करना है एग्जैक्टली. PCM करना है, PCB करना है, इंजीनियरिंग करना है, या फिर हम लोग को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, हम लोग को 12th स्टैंडर्ड के बाद कहाँ पे अप्रोच करना है. वी आर नॉट गेटिंग दिस फैक्ट्स. So what students do generally, they mess up and do a big blunder. They take PCMB, मतलब फिजिक्स भी लेंगे, मैथ्स भी लेंगे, केमिस्ट्री भी लेंगे, बायोलॉजी भी लेंगे. उससे क्या होता है, सब पढ़ने के लिए जाओगे जिसमें 4 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं PCMB. So focusing on 4 subjects at a time is very difficult, and giving 2 competitive exams at a time is also difficult. I am not saying that it is not possible. It is difficult because we are giving our brains to another minds, or to another branches we are setting for our minds, that हम लोग को यहाँ भी फोकस करना है, वहां भी फोकस करना है.
पहले से ही डिसाइडेड रखो हम लोग को इंजीनियरिंग करना है या हम लोग को मेडिकल में अप्रोच करना है। अगर मेडिकल में अप्रोच करना है तो प्लीज खाली पीसीबी लो और बाकी के सब्जेक्ट्स ले लेना। And if you are approaching, let us say engineering, then please consider only PCM और बाकी के subjects ले लेना। Okay. Now, talking about engineering, which exams are meant for engineering? कौन से एग्जाम्स के लिए क्या करना पड़ता है, कितने घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा? मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि सर आई वाज स्टडीइंग फॉर 18 आवर्स, देन आल्सो आई कांट क्रैक द एग्जाम, it is very difficult. Is it very difficult? We have to see that how what everything, the pros and cons we have to see of all the subjects of all the branches what we can enter now. Let us start with the syllabus. PCM for let us say I will take physics because physics तो मैं ज्यादा करके पढ़ा, तो I am a physics faculty in 11th and 12th standard. फिजिक्स का जैसे मैंने बोला, वी हैव टू ओनली क्लासरूम आवर्स आर फॉर फिजिक्स 350 to 400 hours are required to complete the entire physics syllabus. Now let us say let us take the number of hours that we are going to study in the 11th and 12th standard or for the competitive exams that we have to give. बेसिकली मैंने पहले आपको ये बता दिया है कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद ही डिसाइड करना है। यू डोंट हैव टू डिसाइड इन 12th स्टैंडर्ड बेस्ड अपॉन योर मार्क्स दैट इसमें मेरे को ज्यादा आया है तो मैं इंजीनियरिंग अप्रोच करूंगा, इसमें मेरे को कम आया है तो मैं बायोलॉजी या फिर मैं मेडिकल अप्रोच करूंगा, ये करूंगा। अगर ये दोनों भी नहीं हुआ तो मुझे बीएससी करना है। नो, दिस इज नॉट द वे दैट यू आर डूइंग द स्टडीज। Your study should not be based upon, that is your choice should not be based upon your marks. Your choice should be fixed and then you have to approach the marks required for that we can say field or the branch that you are approaching. Okay, so first of all decide your goal. You don't move without your goal. अगर aim ही set नहीं है आपका कि मुझे engineering करना है, ये college से करना है, मुझे medical करना है, मुझे government में जाना है, तब तक आप वो aim के पीछे नहीं भागोगे, तब तक आप वो एम के पीछे नहीं भाग सकते। इफ यू आर डिसाइडिंग योर एम, हम लोग को पता है ना, इफ वी आर टेकिंग लेट अस से अ राइड, हम लोग निकल रहे गाड़ी लेके, हम लोग ऐसे ही तो नहीं निकलेंगे। हम लोग का डिसाइड रहेगा कि हम लोग थाने से निकल रहे तो हम लोग को पुणे पहुंचना है, हम लोग थाने से निकल रहे तो हम लोग को पनवेल पहुंचना है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गाड़ी लेके निकले और हम लोग को मालूम ही नहीं है कहाँ पे जाना है। देन हाउ कैन वी गो एमलेस? So first of all decide your aim and fix your aim that I have to do this. Then afterwards you approach the exam required for that. Now then you take the syllabus and then we can talk about the study and hours. Okay, now I was on the point of hours. ठीक है, हम लोग को कितना घंटा हर रोज पढ़ाई करना पड़ेगा कि सर एग्जाम क्रैक हो जाए, एग्जाम हम लोग को अच्छा स्कोर मिले, सो वी कैन गेट इनटू द डिजायर्ड कॉलेज। Initially we can say when your 10th standard is over, first of all you focus on improving your basics. The time required to improving a basic depends upon person to person. किसके basics अच्छे होते हैं, किसी के weak होते हैं, किसी को मल्टीप्लीकेशन डिवाइड नहीं आता है, बेसिक मेंसुरेशन नहीं आता है, किसी को फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है, किसी को आता रहेगा। सो go through your 9th and 10th standard books even you are in holidays right now and start the, हम लोग बोल सकते हैं ना, pre 11th standard session by yourself. Then after that is completed, तो हम लोग को दिन का we can say when you are entering the 11th standard, at least in 11th standard at least 1 hour per subject you have to dedicate each day. 1 hour per subject you have to dedicate each day. And not dedication means not only let us say watching the videos or attending the classes and all that. I am not talking about the classes. Going to class is not studying, please mind this. हम लोग क्लास जाते हैं, वहां पे लिखते हैं, वहां पे ध्यान देते हैं, वो हम लोग का स्टडी नहीं है। तो हम लोग का स्टडी कौन सा है सर? हम लोग का स्टडी वो है जो हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी, खुद का नोटबुक लिखते हैं। दैट इज द मेन पार्ट दैट यू हैव टू डू। जो आप क्लास में जाके पढ़ते हो, जो आप कॉलेज में जाके पढ़ते हो, जब खुद से घर पे लिखोगे, जब खुद से घर पे पढ़ोगे, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ योर स्टडी।
See guys, in foundation, as I take the foundation classes also, foundation is nothing but clearing the concepts, what I'm saying. जो मैंने बोला था ना, प्री 11th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन है हम लोग का, वही हम लोग फाउंडेशन में करवा के लेते हैं, नथिंग एल्स. वी आर नॉट लाइक डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. सो मतलब उनका आधा सिलेबस हो गया है 10th स्टैंडर्ड में, एंड इन व्हेन दे आर इन 11th आई एम टीचिंग देम 12th. नो नो, that is not the concept, but we are teaching them conceptually how to approach the subjects. ये मतलब कोई भी चीज हमने आया तो conceptually कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कैसे हम लोग conceptually समझ सकते हैं, that is the foundation. तो बहुत सारे लोगों को ये भी चीज रहता है कि कोई फाउंडेशन क्लासेस के लिए जाता है, हम लोग कैसे उनको टैकल कर पाएंगे. नो, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन अस, हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर स्टडीज, हाउ मच डेडिकेटेड वी आर टुवर्ड्स आवर एम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ द नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम लोग क्लास लगाए या नहीं लगाए. Actually, what is this session? I'm guiding you to all the kinds of questions and all the kinds of things that you have to do in 11th and 12th standard, and obviously you know what you don't have to do. ये तो मुझे बताना ही नहीं है कि क्या करना चाहिए 11th और 12th में, क्या करना चाहिए जिससे हम लोग के सब्जेक्ट्स, जिससे हम लोग की एग्जाम्स, जिससे हम लोग के स्कोर्स आए, अच्छे से जाए, ये हम लोग को देखना. Next question that comes out in students mind like nowadays there is a trend, like many of the platforms are coming on YouTube. They are teaching us online and giving the guidance for JEE and NEET. How can we approach that? मतलब वहां से पढ़ाई हो सकता है क्या? वहां से थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे हम लोग, खुद से थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा क्या? See guys, YouTube is also a good platform. बहुत सारा अच्छा कंटेंट YouTube पे भी आ रहा है. मैं तो बोलूंगा जो क्लास में नहीं सिखाया जाता है वो YouTube के प्रोफेसर बहुत अच्छे तरह से सिखा देते हैं. एक आध दूसरा वीडियो मैंने भी देख लिया था YouTube के ऊपर, वहां पे भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, नो डाउट. बट अगेन द पॉइंट देयर इज, द डिसएडवांटेज देयर इज, इफ यू आर गेटिंग अ डाउट, if you are getting like if you are not getting a concept by watching their videos, their live sessions, then you don't have the option to ask them, or if you are asking, then also it is a paid version. मतलब आपको पे करना पड़ता है वो सब कुछ चीजें देखने के लिए. तो हम लोग वहां पे भी जा सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. that totally depends upon the students. Now next point we will see that competition level कितना है अभी. सी गाइस, कंपटीशन लेवल तो हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. वी कैन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ने हम लोग को बताया था कि IIT JEE advanced paper is so much tougher that our 12th standard students are not able to give that paper. मतलब we can say that IIT JEE का जो पेपर है, जो JEE एडवांस का पेपर है, वो it is too difficult for the international students to give. So we can say it is a toughest exam, it is a most approached exam, most approached competitive exam that has been given in India, we can say at this point of time. So competition तो बहुत ज्यादा है, पर हम लोग को ये भी समझना चाहिए, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हम लोग का माइंड शार्पन नहीं होगा. जब तक माइंड शार्पन नहीं होगा तब तक हम लोग का जो 100% आउटपुट है, जो हम लोग गोल्ड बनने वाले हैं, बोलते हैं ना, जब जब सोना सेकता है तभी अच्छा होता है, राइट. सो वी कैन से जब तक competition नहीं है, if you are not getting a healthy competition, if you are not getting a good competition, then 100% of our output is not been given. We have to not only give 100%, but we have to give 200% for this. ओके, हम लोग तब तक हम लोग का खुद का 200% नहीं दे सकते हैं जब तक कंपटीशन अच्छा नहीं. Now, next question arises in the minds of students, right? Which board we should approach? I was in CBSE board in 10th standard. Should I approach HSC board, or should I opt for CBSE board again? What should be done? Is the syllabus of CBSE board difficult than that of the HSC board? In which board should we take the admission and we can easily pass out the 12th standard? See, both of the, now when I am seeing the revised syllabus of HSC standard, मतलब HSC का जो revised syllabus है, which has came out last year only, मतलब the people who are appearing in 12th standard for this year, who are giving the 12th standard in 2021, उन लोग का जो revised syllabus है, it is almost updated to the level of CBSE. अभी JEE मेंस
जेई एडवांस्ड और नीट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं जब एडमिशन लेने आते हैं। तो एक्चुअली जेई मेंस से स्टार्ट करते हैं। जेई मेंस इज एन एग्जाम विच इज गिवन फॉर द एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ओके, इंजीनियरिंग जिसको करना है वो जेई मेंस का एग्जाम देगा एंड देन जेई एडवांस का एग्जाम देगा। सर जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड जेई एडवांस? वी कैन से जेई मेंस बेसिकली इज, देखो, जेई मेंस मतलब there are two types of colleges we can say. See, first is IIT, which is Indian Institute of Technology, we can say. उसके बहुत सारे branches है, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, we can say. There are 7 to 8 branches of IITs in India. So these are the top most premium luxurious colleges from which we can learn and we can get a good package in our life. So these are the best colleges of India, we can say, IITs and NIITs. एंड अदर्स आर लाइक वी कैन सी, जो हम लोग के आसपास कॉलेजेस रहते हैं, लाइक डीवाय पाटिल, वी कैन से सरस्वती। आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई ओनली। देर आर मेनी अदर कॉलेजेस लाइक MIT इन पुणे एंड वेरी अदर, देर आर मेनी अदर कॉलेजेस वी कैन से। तो जेई मेन से क्या होता है, जेई इफ यू आर अप्रोचिंग जेई मेंस, then after giving JEE mains exam you can get an score and you can enter in the Mumbai University colleges that are linked to Mumbai University or any university college like Pune University or Kolhapur University, Anna University, we can say various universities are there. Depending upon the state, depending upon the region you are living in, there are various universities and there are various colleges of that universities. So we can go for JEE mains, you can give JEE mains and you can get an admission in the engineering college which is near you, and it depends upon the score, that depends upon the percentile that you are getting, and you will get the admission. You can see the cut off, last previous year cut off आप लोग देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ क्या है, हम लोग कैसे वो कॉलेज के अंदर एंटर कर सकते हैं, कितना मार्क्स लगता है, वो देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग का प्रिपरेशन चालू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम desiring to go in let us say Father Agnel College of Engineering, which is situated in Vashi. I like the college. Okay, then I will see the cutoff. What is the cutoff for previous years? What is the cutoff for let us say, also the cutoffs are different for different categories of students. Let us say for open or unreserved, the cutoff is different. For other caste, the cutoff is different. For minorities, the cutoff is different. That is totally a different part. I will come on this also. So हम लोग कट ऑफ देख सकते हैं वो कोई कॉलेज का, और हम लोग वी कैन टेक और सिक्योर द एडमिशन अकॉर्डिंगली। जेई मेंस के बाद आता है जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड हम लोग को देना है फॉर गेटिंग और सिक्योरिंग एडमिशन इन आईआईटी कॉलेजेस, जो लग्जरियस प्रीमियर कॉलेजेस है हम लोग को, उसके अंदर एडमिशन चाहिए, तो देन वी आर गोइंग फॉर जेई एडवांस्ड। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू गिव जेई एडवांस टू गेट अ कॉलेज इन मुंबई यूनिवर्सिटी। प्लीज रिमेंबर, मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस अलग है, उन लोग को जेई मेंस के एग्जाम पे भी हम लोग को एडमिशन वहां पे मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्कोर। बट इफ यू वांट टू अप्रोच IIT colleges, then you have to opt for JEE Advanced. Sir, JEE Advanced तक कैसे पहुंचे? Now, after giving your JEE mains paper, then they will decide a qualifying score. Let us say the qualifying score for last year was 88 something, 88.76 for unreserved category. If you are securing 88 percentile in your JEE mains paper, then you are qualifying for JEE advanced paper. मतलब अगर 88 परसेंटाइल आप स्कोर करते हो तो आप जेई एडवांस के एग्जाम के लिए बैठने के लिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं आप बराबर हो, आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया है, आप जेई एडवांस के पेपर को बैठ सकते हो। ओनली यू कैन क्वेश्चन है सर, तेजस सर। यस यस। सो 12 के बाद जेई मेंस देना है, बराबर? हाँ। हाँ, साइंस के बाद। और हम लोग yes. 12 के बाद डायरेक्ट जेई एडवांस नहीं दे सकते, राइट? नहीं नहीं दे सकते। फिर ओके। एक बार मैं रिपीट करता हूँ सर ये क्वेश्चन के लिए। यस। देखो, हम लोग का 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम होने
के बाद जेई मेंस का एक पेपर होता है। जेई मेंस का पेपर जो है, जेई मेंस के पेपर में एक मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करने के बाद, मतलब एक मिनिमम स्कोर करने के बाद हम लोग क्वालिफाई होते हैं जेई एडवांस के पेपर को बैठने के लिए, और तब हम लोग जेई एडवांस के पेपर को बैठ सकते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग अ गुड स्कोर इन जेई एडवांस का पेपर और गेटिंग अ क्वालिफाइंग स्कोर इन जेई एडवांस का पेपर, देन ओनली वी कैन गो इनटू आईआईटी। after giving JEE mains का पेपर, then only we can give the JEE advance का पेपर, and after giving JEE advance का पेपर, उसमें स्कोर आने के बाद ही हम लोग IIT में एडमिशन ले सकते हैं। For giving JEE advance paper, it is a compulsory must, please note this, it is compulsory to give JEE mains का पेपर। जेई मेंस का पेपर स्किप करके जेई एडवांस का पेपर नहीं दे सकते हम लोग। और वो भी जेई एडवांस का पेपर बैठने के लिए जेई मेंस में एक क्वालिफाइंग स्कोर आना नेसेसरी है। There are two attempts for JEE mains paper. Like if you are let us say I am considering that some of the student has passed out 10th now, he is now in 11th standard, so he will be giving his let us say JEE mains का जो एग्जाम है वो 2022 में देने वाला है। ओके 2021 में वो 11th स्टैंडर्ड पास हो जाएगा, 2022 में वो जेई मेंस का पेपर देगा। सो जेई मेंस के लिए दो अटेम्प्ट्स रहता है, वन इज अ जनवरी अटेम्प्ट एंड वन इज एन अप्रैल अटेम्प्ट। ओके जनवरी के अटेम्प्ट भी हम लोग दे सकते हैं, अप्रैल का अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनवरी का अटेम्प्ट दिया और अप्रैल का नहीं दिया तो भी चलेगा, जनवरी का नहीं दिया अप्रैल का दिया तो भी चलेगा, या फिर जनवरी का भी दिया अप्रैल का भी दिया तो भी चलेगा। तो दोनों में से बेस्ट कोई तो काउंट करते हैं और फिर हम लोग का क्वालिफाइंग, मतलब हम लोग क्वालिफाइड है कि नहीं वो जेई एडवांस के एग्जाम के लिए, वो हम लोग देखते हैं। So there are two exams of JEE Mains. It is first is in January, second is in April, and then the result comes out, and in May we can say roughly JEE Advance का हम लोग का पेपर होता है। मतलब वो क्वालिफाइंग मार्क्स बताते हैं, सबका मार्क्स कितना आया है वो डिस्प्ले करते हैं, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किसको कितना मार्क्स चाहिए वो बताएंगे। अगर आपको उतना मार्क्स है तो आप जेई एडवांस के पेपर के लिए बैठ सकते हो या फिर नहीं बैठ सकते। इसमें एक लूप होल प्लीज समझ के लीजिए, दैट फॉर अपियरिंग योर जेईई मेंस पेपर, for appearing your JEE mains paper you should secure 75% minimum in your 12th standard board। ये पैंडेमिक सिचुएशन था, इसके लिए this year it was removed, but please remember in your 12th standard board, whatever board you are, CBSE, your HSC, it is not of any concern, you should secure a 75% marks in your 12th standard board, then you can opt for JEE mains paper, then after giving JEE mains paper you should get qualified for giving JEE advanced paper, then you can give JEE advanced paper, and then if you are scoring good then you will get into IIT। so three steps are there, first 12th standard का पड़ाव पार करना पड़ेगा, उसमें 75 स्कोर करना पड़ेगा। again I am talking about unreserved category, for reserved category I think so it is 65 percentile, 65 percentage। then you have to go for JEE मेंस पेपर, एंड JEE मेंस में क्वालिफाइंग स्कोर निकालना पड़ेगा, वो भी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगा, यू कैन सर्च फॉर दैट ऑन द नेट, एंड वो देने के बाद फिर JEE मेंस एडवांस का पेपर दे सकते हैं। जेई मेंस का पेपर कितने मार्क्स का होगा सर? इट विल बी ऑफ 360 मार्क्स। ओके जेई मेंस का पेपर 360 मार्क्स का होगा। जेई एडवांस का पेपर कितने मार्क्स का होगा? जेई एडवांस का पेपर इट डजंट, वी डोंट नो actually, what are you saying sir, we don't know the marks? Yes, actually the marks of JEE advanced paper are not decided for every year. In 2014 it was for 360 marks, in 2015 it was for 354 marks, in 2016 it was for 504 marks, in 2017 it was for 373 marks, in 2019 it was for 354 marks। so जब तक पेपर हाथ में नहीं आता है हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने मार्क्स का पेपर है, फिजिक्स के लिए कितना वेटेज दिया है, मैथ्स के लिए कितना वेटेज दिया है, केमिस्ट्री के लिए कितना वेटेज दिया है। द सेक्शंस आर डिसाइडेड, सेक्शन 1 रहेगा उसमें पीसीएम रहेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सेक्शन 2 रहेगा जिसमें फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर विल बी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर विल बी सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। सो आई एम मूविंग अहेड टू नीट का कैसे हम लोग कर सकते हैं, कितने बार एग्जाम दे सकते हैं। सी नीट इज लाइक, हम लोग को पहले 12th स्टैंडर्ड बोर्ड मतलब सीबीएसई हो एचएससी हो, वी हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ओवरऑल
in our CBSE or HSC exam, 50% marks, and then we are qualified for giving NEET exam. Okay, now NEET exam is being conducted once in a year. You have ओनली वन अटेम्प्ट टू गिव नीट, दो अटेम्प्ट नहीं होते हैं यहाँ पे. और नीट के बाद ऐसे नीट एडवांस, नीट मेंस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है. नीट का एक ही एग्जाम होता है, वही एग्जाम के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको मेडिकल में एंट्रेंस मिलेगा. Okay, so NEET is conducted only once, we can say in April roughly. Now, what are the options open for us after giving JEE mains and JEE advanced? Let us say JEE mains के बाद सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस हम लोग को ओपन हो जाएंगे. मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक्सेट्रा इंजीनियरिंग आर अवेलेबल. So which engineering can I get? It depends upon. Hello. Go ahead. One of the participants put his mic on unmute. So fine. Go ahead. Oh, yeah. No problem. No problem. So, JEE देने के बाद what are the options available? If you are giving JEE mains, you can go to any branch of your engineering that I have discussed. मतलब any university like Mumbai University, Pune University, according to your score, according to your marks, you are getting a college, you are getting the branch. If you are getting a good score, you are getting the desired branch. If you are not getting a good score, then maybe you're getting a different branch, or that is another thing we can say. But you should aim for achieving your goals always. Now, सेकेंड थिंग, आफ्टर गिविंग जेईई एडवांस हम लोग को कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, ये ब्रांच चाहिए, वो ब्रांच चाहिए. कौन सा आईआईटी मिलेगा? मद्रास मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, बॉम्बे मिलेगा, कि गुवाहाटी मिलेगा, या रुड़की मिलेगा, खड़गपुर मिलेगा? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स ओनली. आपको मार्क्स अच्छा है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे देखेंगे तो बॉम्बे का कट ऑफ सबसे ज्यादा है और दिल्ली का सबसे ज्यादा है. वैसे देखने तो बॉम्बे एंड दिल्ली का कट ऑफ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, और वहां पे सब ज्यादा ब्रांचेस अवेलेबल भी है. वी कैन से देयर इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन आईआईटी बॉम्बे, देयर इज मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, एवरीथिंग. बहुत सारे इंजीनियरिंग अवेलेबल है. सो द मोर रैंक यू आर गेटिंग, द गुड आईआईटी यू आर गेटिंग इनटू. ऐसा है क्या कि कोई आईआईटी अच्छा है, मतलब आईआईटी बॉम्बे अच्छा है, आईआईटी दिल्ली खराब है, खड़गपुर अच्छा है अपना, फिर गुवाहाटी खराब है? नो. क्वेश्चन एनी. आया है. हाँ, पूछ रहे कि ये बी और बीटेक इसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. अभी बीई इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक इज बैचलर ऑफ टेक्निकल. तो बी और बीटेक में क्या फर्क होता है? एक्चुअली फर्क कुछ नहीं होता है, सिलेबस में फर्क है. बी का अप्रोच हम लोग बोलेंगे इट इज अ लिटिल बिट थियोरेटिकल, एंड बीटेक का अप्रोच हम लोग बोलेंगे इट इज लिटिल बिट प्रैक्टिकल. बीई हम लोग थियोरेटिकल ज्यादा नॉलेज देने के ऊपर फोकस करता है, एंड बीटेक हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. इट इज प्रैक्टिकली बेस्ड, उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा रहेंगे, और बीई में थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा कम रहेगा. ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल होगा ही नहीं, दैट इज नॉट द केस. देयर विल बी प्रैक्टिकल्स कंडक्टेड इन बीई आल्सो, एंड देयर विल बी सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स इन बीटेक आल्सो. बट द थियरी का सब्जेक्ट्स इज ग्रेटर इन बी एंड इट इज लेस इन बीटेक, वी कैन से. तो प्रैक्टिकलिटी अप्रोच इज ग्रेटर. दोनों के लिए जेईई मेंस देना पड़ता है? Yes, sir. For both of them, you have to give JEE mains, and after getting JEE mains, you have to search which of the college offers BE and which of the college offers BTech. And according to the cutoff, if you are securing the marks, you can get BE or BTech if you want. Okay. What does IIT offer? बीटेक और बी? या बीटेक, आईआईटी बहुत सारे ऑफर करते हैं. बीटेक ऑफर करता है एक, हम लोग को डुअल डिग्री भी रहता है, कुछ कुछ बीटेक प्लस एमटेक भी ऑफर करता है, डुअल डिग्री भी ऑफर करता है, एमटेक प्लस पीएचडी भी ऑफर करता है. ऐसा भी होता है. तो उसके लिए स्कोर एंड द इंटरव्यू यू हैव टू क्वालिफाई. अगर बी मतलब बीटेक प्लस एमटेक या बी प्लस एमई एक साथ करना है, डुअल डिग्री लेना है, तो उसके लिए सिलेबस थोड़ा टफर रहता है, और उन लोग का इंटरव्यू होता है, उन लोग का पैनल बैठता है, वो इंटरव्यू लेता है, उसके हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना. नाउ नेक्स्ट इज जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट का सिलेबस क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं सिलेबस सर, सिलेबस 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 सिलेबस. गेट के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे?
हाँ सर, ये थोड़ा सा जेई मेंस और एडवांस होने के बाद मैं गेट के ऊपर ही आने वाला हूँ। ओके कोई सर, ओके। क्वेश्चन है क्या गेट के ऊपर? हाँ, क्वेश्चन आया, आई वांट टू गिव गेट एग्जाम, सो व्हाट इज द प्रोसेस, यशवंत पूछ रहा है। यस सर, या एक थोड़ा सा जेई के ऊपर डिस्कस कर ले, फिर हम लोग गेट के ऊपर ओके, जाएंगे। ओके। ओके सर। तो जेई मेंस, हम लोग जेई मेंस एडवांस एंड नीट का हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वो सिलेबस क्या है? सिलेबस इज क्लियरली स्पेसिफाइड बाय वी कैन से द बॉडीज दैट आर कंडक्टिंग दिस एग्जाम्स। हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबस तो अप्रोक्सीमेटली सबके लिए, मतलब सबके लिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो कुछ भी दे रहा है, कोई भी बोर्ड का रहने दो, सीबीएसई एचएससी, सबके लिए एक ही सिलेबस स्पेसिफाइड होता है। जेई मेंस का ये सिलेबस है, जेई एडवांस का ये सिलेबस है, नीट का ये सिलेबस है। तो उसके हिसाब से हम लोग को सिलेबस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। नाउ पेपर पैटर्न मैंने जैसे बोला, जेई मेंस का होता है 360 मार्क्स, नीट का होता है 720 मार्क्स टोटल, एंड जेई एडवांस का हम लोग नहीं बोल सकते कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। इट फ्लक्चुएट्स, किसका कितना मार्क्स आता है, किसका कितना वेटेज है, दैट इज नॉट डिसाइडेड टिल द पेपर कम्स टू योर हैंड। सो इट इज अ सरप्राइज गिफ्ट वी कैन से। आप कैसे जाओगे, कैसे अप्रोच करोगे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेई मेन 360 मार्क्स होता है, तो फिजिक्स 120, मैथ्स 120, केमिस्ट्री 120 वी कैन से। ऑल्सो नीट 720 में प्लीज नोट, बायो इज ओनली ऑफ 360 मार्क्स। बायो 360 मार्क का होता है, और बाकी का जो 360 है ना, वो पी अपना 180 मार्क का है, सी अपना 180 मार्क का है। सो 180 180 360, एंड ओनली बायो 360, दैट इज 720 मार्क्स इन टोटल वी हैव टू गिव द पेपर। ओके। सो दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस का तो नहीं है, नीट का हम लोग ने बोल Rohit दिया। Shinde is asking which book to refer for JE. या आई विल कम टू दैट पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ दूसरा होता है, एक गाइडेंस आपको कैसे मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे मेंटर मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट। अगर मेंटर अच्छा है तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आस्क इज प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग को स्टडीज कैसे करना है। एक बार सिलेबस पता चल गया हम लोग को, तो हम लोग स्टडी कैसे करें। सी गाइज, आई थिंक दैट इफ यू आर टेकिंग अ coaching, or if you're studying from college anything, so मंडे से फ्राइडे जो कुछ भी आपका स्केड्यूल है, सी टू इट दैट यू आर, मतलब हम लोग जैसे ही कोचिंग के लिए जाएंगे, वैसे उस दिन के उस दिन ही हम लोग जो पढ़ाया हुआ है वो खुद के वर्ड्स में, खुद के नोट्स में लिख के ले। एंड सैटरडे संडे शुड बी गिवन फॉर रिवीजन। जो भी हफ्ते में हम लोग ने किया है वो हम लोग बोलेंगे कि कर लेंगे रिवाइज, और पूरा नोट्स लिख के उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हफ्ते में एक बार तो लैंग्वेज एंड सीएस जैसे सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस है, या फिर जो नीट दे रहे हैं उन लोग का ज्योग्राफी वगैरह है, वो हफ्ते में एक बार देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग नहीं देखेंगे तो चलेगा, नो, दैट इज नॉट द केस। वी हैव टू सी द सब्जेक्ट्स वंस इन वन वीक। like English, we have to take geography once in 1 week, so that it does not pile up at the exam and we are not frustrated during the exams. नेक्स्ट आता है बुक्स कौन सा रेफर करें जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन करने के लिए। जनरली आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी, बाकी के मैथ्स और केमिस्ट्री फैकल्टी भी है हम लोग के पास। फिजिक्स आई विल टेल दैट मेनी ऑफ द बुक्स आर देयर इन मार्केट। कोई ऐसा बुक नहीं है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है, पर जनरली आई रेफर डीसी पांडे फॉर लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। ना लर्निंग फेज इज ओवर, बट डीसी पांडे इज अ गुड बुक। डीसी पांडे का 5 वॉल्यूम्स जो है, दैट इज अ बेटर बुक फॉर फिजिक्स, बोथ फॉर, मतलब फिजिक्स का जेई मेंस एंड जेई एडवांस का डीसी पांडे आता है, और नीट का भी डीसी पांडे आता है। तो आप फिजिक्स के लिए डीसी पांडे रेफर कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी क्रक्स रेफर कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी क्रक्स रेफर कर सकते हैं, और मैथ्स के लिए बीएम शर्मा का एक बुक आता है वो रेफर कर सकते हैं हम लोग। ऐसे there are many good books, but it depends totally upon you how you are approaching. If you are going to coaching classes, उनके notes भी बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कोई books भी है, books देखने जाएंगे तो ये books बहुत अच्छे हैं। Now let us move a little bit to गेट का सेशन। मतलब गेट कैसे होता है, मतलब व्हाट इज गेट, गेट देने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट का सिलेबस क्या है, एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर दैट टू क्रैक। नाउ इंजीनियरिंग, आफ्टर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग, जैसे हम लोग को इंजीनियरिंग
में आने के लिए जेई मेंस एंड जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है, वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम्स है, या फिर आईआईटी से हम लोग को एमई करना है, या फिर बाकी दूसरे कोई भी कॉलेजेस से एमई करना है हम लोग को, या फिर एमटेक करना है, उसके लिए हम लोग को गेट अप्रोच करना पड़ता है, गेट देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो हम लोग को देना पड़ता है। नाउ गेट का प्रिपरेशन कैसे करें? बेसिकली देखो, फर्स्ट ईयर हम लोग के इंजीनियरिंग का तो 4 ईयर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर यू आर अननोन ऑफ एवरीथिंग, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि 10th से 11th का जंप बहुत बड़ा है, वैसे ही इंजीनियर मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाने का वो जंप है, वो भी बहुत बड़ा है। फर्स्ट ईयर में भाई जब हम लोग जाते हैं, वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग, वी आर लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड मतलब समझने में ही एक साल निकल जाता है। सो इट इज ओके, यू आर नॉट अप्रोचिंग गेट फॉर द फर्स्ट ईयर। it is better, it is good if you are starting the studies from second year of your engineering, second year third year fourth year इंजीनियरिंग का जो है उसमें ही गेट का प्रिपरेशन हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। अर्लियर द बेटर, आई विल से। अगर सेकेंड ईयर में कर रहे हो तो वेरी गुड, थर्ड ईयर में कर रहे हो तो भी अच्छा है, फोर्थ ईयर में कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ ईयर में मैंने खुद ने फोर्थ ईयर में स्टार्ट करके गेट को अप्रोच करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एमई कंप्लीट किया है मेरा। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी रहता है कि इसने तो सेकेंड ईयर से ही क्लास लगा लिया था, इसने तो सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, एंड आई एम नॉट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन येट, आई एम इन फोर्थ ईयर, हाउ कैन आई डू, विल आई क्रैक और नॉट? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू हैव अप्रोच्ड द सब्जेक्ट। इफ यू आर इन अर्लियर से, यशवंत वाज आस्किंग मी द क्वेश्चन, तो आप अगर सेकेंड ईयर में हो, अभी से चालू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, अभी से चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग गेट इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गेट को रिपीट करना पड़ता है, कि एक अटेम्प्ट में गेट हम लोग को क्वालिफाई नहीं होता है, हम लोग को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। दैट इज नॉट द केस। आई पर्सनली हैव started my studies in fourth year of engineering, और मैंने एक साल में ही पूरा एप्टीट्यूड, पूरा मैकेनिकल का सब्जेक्ट्स पढ़ के गेट दे के मैंने एमई में एडमिशन लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल में गेट क्रैक नहीं होता है, दैट इज अ मिथ, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। एक साल में गेट क्रैक हो सकता है, there is no point of repeating the gate. If you are repeating, if you are not getting the score, you can repeat. I am not telling कि repeat नहीं करना चाहिए, पर होता है, एक साल में भी पढ़ाई हो जाता है। तो कोचिंग क्लासेस, सेम क्वेश्चन, लाइक कोचिंग क्लासेस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच, व्हाट इज द सिलेबस? वी विल से द सिलेबस इज लाइक जो आप 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम नॉट, बट इफ आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, द मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट्स है, थर्मोडायनेमिक्स या फिर मैकेनिक्स, डिजाइन, ये सब्जेक्ट के ऊपर ही और ये सिलेबस के ऊपर ही हम लोग का गेट का एग्जाम बेस्ड रहेगा। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे जन बोलते हैं कि बाहर का सिलेबस है भाई, एमई का कुछ तो आएगा, आगे का कुछ। नो 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 नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। प्लीज रिमेंबर, नो, the stuff that you are learning in second standard nahi, second year, third year and fourth year of your engineering, that is second, third and fourth standard only. So we can say second year, third year and fourth year we are learning, that is the syllabus for gate। वही अच्छे से प्रिपेयर करो, वही पेपर में आने वाला है, irrespective of your branch। I am telling you, you are in computer, you are in IT, you are in mechanical, you are in civil, you are in production, it does not matter. The thing or the stuff you are learning in second, third and fourth year, the same stuff you are getting in your gate paper। So learn your syllabus thoroughly। फर्स्ट ईयर का भी मैथ्स में से आता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर का नहीं आता है, बट थोड़ा कम आता है। सेकेंड ईयर से हम लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट चालू होता है, जैसे मैकेनिकल का थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, और CSIT का लैंग्वेजेस वगैरह स्टार्ट होता है, वैसे ही हम लोग का गेट में ये होता है। जनरली व्हाट वी सी इज engineering students have a lot more time एंड दैट्स कंपेयर्ड टू 11 10 12 स्टैंडर्ड। तो मतलब 11 10 12 से हम लोग कंप्रेस होके ऐसे इंजीनियरिंग में आते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। देन द टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट इज टू टाइम पास इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड देन लाइक अवेक, ओ माय गॉड, दिस इज थर्ड ईयर, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एंड ऑल दैट। प्लीज, if you are in second year, start the studies in right now। if you are in fourth year, I will advise, it is a peak time, please start, you can do right now also, I have done।
This is a live example. How to prepare? Again, we can say preparation is completely upon you. If you are reading the reference books, if you are reading the sub, हम लोग generally what we do is in the trend here in I don't know, मतलब in Mumbai University the trend is like we are reading the tech max and small technical books and we are appearing for the paper. No, that is not the good way to do this. The main point is you should learn or you should read the reference books. That I have done from second year only. During our time no such books were available like tech max publications and all that. I generally don't prefer these books. So बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो इंजीनियरिंग क्लास लगाते हैं वो भी बोलते हैं सर ये सब्जेक्ट का टेक मैक्स कर लूं तो हो जाएगा क्या, व्हाट इज दिस हो जाएगा, मतलब वो एग्जाम क्रैक करवा लेगा आपका, जो आपका 32 35 40 जो स्कोर है वो निकाल देगा, बट इट विल नॉट बेनिफिट यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. Please try to go from the reference book, learn from the reference book, and write the self notes of every subject as per my concern, and then you can accumulate the knowledge and then you can go for the gate exam. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो गेट सेकेंड ईयर से पढ़ रहे थे, थर्ड ईयर से पढ़ रहे थे, उन लोग ने भी अच्छा स्कोर किया. जो फोर्थ ईयर में कर रहे थे उन लोग ने भी अच्छा स्कोर किया. सो इट इज नॉट दैट आई एम अगेन रिपीटिंग, फोर्थ ईयर में नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं. फिर बेनिफिट क्या क्या है हम लोग को गेट देने के बाद? सी गुड कंपनीज जो है, बड़े बड़े कंपनीज जो है आपका गेट स्कोर देख के आपका जॉब का जो मॉक रहता है या फिर जो टेस्ट रहता है वो स्किप करते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए ले लेते हैं. ओएनजीसी जैसे कंपनीज है वो जो गवर्नमेंट जॉब्स है हम लोग का, वो हम लोग को ओपन अप हो जाते हैं गेट देने के बाद. हम लोग बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो मॉक टेस्ट रहता है ना, वो जेई अगर हम लोग क्रैक कर लेते हैं तो वो देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. यू ऑल्सो ऑल ऑफ अस नो दैट गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग का दो स्टेप रहता है. एक रहता है सीबीटी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एक रहता है इंटरव्यू. तो अगर आप जेई क्रैक अपना गेट क्रैक कर लेते हो तो there is no need to give CBT exam in railways or we can say in अपना ONGC और अदर कंपनीज दैट वी आर अप्रोचिंग, BPCL HPCL, वो हम लोग को CBT देने का कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे हम लोग को. इफ यू आर गेटिंग क्रैकिंग द इंटरव्यू, यू आर गेटिंग द जॉब. दैट इज द गुड पॉइंट ऑफ दैट. और इफ यू वांट टू लर्न अहेड लाइक आई हैव डन ME या MTech करना है, उसके लिए तो गेट कंपलसरी ही है. कोई भी कॉलेज विदाउट गेट, मतलब गेट नहीं देंगे और ME को एडमिशन देगा ऐसा नहीं हो सकता है. गेट देना ही पड़ता है. और हर एक कॉलेजेस का अगेन आई विल से दैट द कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन एवरी कॉलेज. लाइक आई हैव डन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसका कट ऑफ थोड़ा है होता है, दूसरे यूनिवर्सिटीज में कम होता है. अगर आईआईटी में करना है, आईआईटी में एमटेक करना है, मास्टर्स को अप्रोच करना है, तो भी गेट ही देना पड़ेगा. उसके लिए भी गेट ही है, हम लोग उसके लिए भी गेट देंगे और देन वी कैन एंटर इनटू आईआईटी अगेन. So there is a, if you are learning from Mumbai University or any other college, you have a golden chance. If not got IIT for your engineering, you can get into IIT by giving a GATE exam. So आप masters वहाँ से कर सकते हो. अगेन कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिफर करता है गेट का हर एक कॉलेज के लिए. आईआईटी के लिए वो तो आप देख सकते हो नेट से, कोई अगर डिजायर्ड कॉलेज है आपका तो उसका कट ऑफ यू कैन सी एंड यू कैन अप्रोच द कॉलेज अकॉर्डिंगली कि कैसे है क्या है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उसके लिए. So cut off is again different. Now basically how to prepare for GATE. See guys, we have 5 या 4 subjects per semester. You know the you should know the syllabus of your GATE कि GATE में कौन से subjects आते हैं. I am not telling that 48 के 48 subjects हम लोग को useful है GATE में, at least 40 subjects useful है. तो कौन से subjects है वो subjects का preparation पहले से ही reference book से चालू करो. reference book से खुद का self notes बनाओ, knowledge accumulate करो और उसको revise करते रहो. For example, there are 4 subjects in this semester for me, of which 3 subjects are useful and one is like English or any other subject which does not come, that is communication skill, which is not which does not actually come in GATE example I am giving.
So start preparing the 3 subjects from reference books, write your self notes. if you are going to coaching for these subjects also, सर को भी बोलो सर मैं ये डाउट है वो डाउट है, उनसे भी क्लियर करवा के लो सब कुछ चीज, मैं कौन सा बुक रेफर करूँ, आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम टेक्मैक्स, प्लीज टेल मी द रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक ऑफ दिस सब्जेक्ट. You can start preparing from the text book, accumulate the knowledge and then you can easily crack the gate. गेट ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बाहर का सिलेबस है. जैसे हम लोग का 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें से हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा जेई मेंस का उससे ऊपर है, वैसे गेट का नहीं है. जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वही गेट में आता है, अलग से कुछ नहीं आता है गेट में. ओनली द थिंग इज 40 subjects are given together and hence its difficulty level is increased, we can say. सो हाउ टू प्लान, हर एक सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट्स है वो रेफरेंस बुक से लर्न करना चालू करो, उसका बुक्स बनाना चालू करो. अगर बुक्स बनाने चालू करोगे तो नॉलेज एक्यूमुलेट होगा, नॉलेज एक्यूमुलेट होने के बाद उसको रिवाइज करते रहो और जैसे ही 4th ईयर में आओगे सारे पिछले सब्जेक्ट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देना. 4th ईयर बहुत अच्छे से करना, प्रोजेक्ट खुद से करना, खरीदना मत बाहर से, वो एक है, उससे भी नॉलेज बहुत अच्छा आता है हम लोग को. एंड एट द फाइनल सेमिस्टर मतलब 4th ईयर का लास्ट सेमिस्टर जो है वहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चालू करना गेट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रैकिंग द गेट एग्जाम. उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, उसके लिए आर एस अग्रवाल है वो रेफर करना, और बाकी का सब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंसेस बुक रेफर करना, और गेट का एग्जाम अच्छे से हम लोग को अच्छा स्कोर आ सकता है उसके अंदर. नाउ let us again move towards JEE mains advanced and NEET wala ye. So I'm going to सर एक क्वेश्चन था. introduce. हेलो. हाँ सर, क्वेश्चन था. हाँ. जैसे कि आपने डुअल डिग्री के बारे में बताया था, बीटेक और एमटेक, तो आईआईटी में अगर जेई एडवांस देके अगर बीटेक के लिए एडमिशन होता है तो हम लोग एमटेक भी कर सकते हैं या गेट देना ही जरूरी होता है? अगर वहां पे सर जेई एडवांस का स्कोर अच्छा होगा और वो लोग इंटरव्यू में हम लोग जो इंटरव्यू पैनल बैठता है वो हम लोग क्रैक करेंगे तो हम लोग डुअल डिग्री भी ले सकते हैं. वहां पे हम लोग को गेट देने का जरूरत नहीं होता है एक्चुअली, हम लोग डायरेक्टली डुअल डिग्री का ही एडमिशन ले सकते हैं वहां पे और वो उसमें ही हो जाएगा. बट इफ यू आर अलग से हम लोग अगर अप्रोच कर रहे हैं 4 ईयर इंजीनियरिंग में जाके, फिर मतलब इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग इन नॉर्मल मुंबई यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज एंड देन यू हैव टू गो टू आईआईटी, और या फिर दूसरा एमई करना है तो हम लोग को गेट देना ही पड़ेगा. अगर मतलब पहले से स्टार्टिंग से ही आप अगर डुअल डिग्री में लग गए तो फिर गेट देने की जरूरत नहीं है. अगर आप नहीं लगे तो बाय डिफॉल्ट, अगर आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, बीटेक पढ़ रहे हो खाली, इफ यू आर लर्निंग ओनली बीटेक and you want to get into IIT again for MTech, then also you have to give gate. स्टार्टिंग में ही अगर डुअल डिग्री मिल गया तो फिर नहीं देना पड़ेगा. Okay, now let us move to I will just give introduction about our classes, how we conduct and how we approach the students and how we take the classes. Myself, Tejas sir, I am teaching physics basically, and teaching physics since last 10 plus years I can say, and engineering from last 8 plus years. So I have a lot of ample amount of experience in teaching physics, how to get into IIT, how to crack JEE mains, how to crack NEET, how to crack JEE advanced questions, and how to get prepared for these competitive exams. I'm well versed in this. My second faculty is Prashant sir, who is taking maths. He is an ex ISRO, we can say an employee. He was in ISRO and he has left ISRO and he's in teaching now. He also has a 13 plus years of experience. And third one is Abhijit sir, who is taking chemistry. Yeah, he's also, we can say, he has done MSc and approaching PhD in pure science. He's taking chemistry. And Rishikesh sir, he also has a lot amount of experience. He take biology, and he is a senior most faculty, we can say. He has a 20 plus years of experience in biology teaching. He personally is a MSc microbiology, and teaching is way better than any other professor, I can say. So what we are into, I will introduce this. Actually हम लोग
वन टू वन ट्यूशन ज्यादा लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय वन टू वन ट्यूशन? मतलब हम लोग अभी जाते हैं बहुत बड़े क्लासेस लें, वहां पे देखते हैं देर आर मोर देन 30+ स्टूडेंट्स। तो 30+ स्टूडेंट्स में एक्चुअली देखने जाएंगे तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग वैसे देखने जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होता है। और हर एक का पढ़ने का पेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ रोहित इज लर्निंग विथ अ ग्रेटर पेस, ऐसा नहीं है कि रोहन भी वही पेस से पढ़ेगा, अलग पेज से पढ़ सकता है। उसको समझ में आया तो इसको समझ में नहीं आता, इसको समझ में आया तो उसको समझ में नहीं आता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो कैसा है कि सबको समझ में आने का टाइम और सबको समझ में आने के लिए कैपेसिटी और सबको समझ में आने के लिए बैकग्राउंड जो है, जिसका बेसिक जो है वो बहुत मैटर करता है। इसके लिए व्हाट वी आर इनटू इज अ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड ट्यूशन, जहाँ पे खाली प्रोफेसर आपको अकेले को पढ़ाएगा at your home. It may be online also, if may it may be offline also. If you are staying in Mumbai, obviously it is on offline, that is we are coming to your home and we are giving the tuitions. And if you are outside Mumbai, then it is offline mode we are giving. Then like we are, हाउ इज द टीचिंग पैटर्न? मेरा खुद का टीचिंग पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। पहले तो फिजिक्स हम लोग को क्रैक करना है तो न्यूमेरिकल्स इज दी मस्ट फॉर सॉल्विंग। हम लोग को न्यूमेरिकल्स कौन सा क्रैक करना है। आई एम टेकिंग जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नीट तो वैसे ही हम लोग जेई मेंस का लेवल का पढ़ेंगे तो नीट हो ही जाएगा। जेई मेंस में कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब कौन से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है जेई मेंस में, मैं ये सब पूरा देख के बैठा हूँ। लास्ट 8 years आई एम इनटू इट एंड आई हैव लर्नड एवरीथिंग कि कौन सा पेपर कब, कौन से पेपर में कितना ज्यादा, कौन से चैप्टर को वेटेज है, कौन सा क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से लेवल तक का क्वेश्चंस करना चाहिए, कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस पेपर में, कौन से क्वेश्चंस आए थे ये साल में, कौन से मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, बट व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन या फिर दिस सेक्शन बेसिकली। सो वी ऑल ऑफ अस नो दैट ये कैसा है। ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ द्विज एकेडमी इज वी कैन से हम लोग पर्सनलाइज ट्यूशन लेते हैं। हम लोग घर पे आएंगे आपके, खाली आपको सिखाएंगे और कोई भी नहीं रहेगा। या फिर इफ यू आर कंफर्टेबल इन बैचेस, यू वांट अ हेल्दी कंपटीशन, तो ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे रहेंगे, उससे ज्यादा तो कोई बच्चे नहीं रहेंगे। वी आर नॉट into like hurdles of people you are not teaching. That is not the way of teaching of my class basically. Other professors teach in other academy also, this is my academy. We are teaching one to one only. तो वन टू वन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे, उससे ज्यादा तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इन अ कस्टमाइज्ड वे? आपके पेज से सब कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा 100%। फिर आपको पर्सनलाइज आपके लेवल के हिसाब से असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपके हिसाब से आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपको पेपर आपके हिसाब से मिलेगा, आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे और आप किस में कमजोर हो, किस में लैग कर रहे हो और किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो आपको पर्सनलाइज वे में सीखने के लिए मिलेगा। किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी के साथ हम लोग बोलेंगे कि कंपटीशन नहीं है, उसको ज्यादा समझ में आ रहा है, मेरे को कम समझ में आ रहा है, नो। हम लोग आपके हिसाब से सब कुछ प्लानिंग करते हैं। मेरा सिखाने का टेक्निक फिजिक्स है basically theory plus numericals, theory plus numericals. Every topic I'm covering theory, numerical, theory, numerical, theory, numerical. And I never start physics with 11th standard. प्री 11th स्टैंडर्ड आई एम टीचिंग। प्री 11th स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो हम लोग को 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स और फिजिक्स में हुआ है, पहले मैं वो फाउंडेशन कोर्स देता हूँ एक 15-20 दिन के लिए, और उसके बाद मैं खुद से फिजिक्स या फिर मैं बाकी के फैकल्टी को बोलता हूँ कि अभी हम लोग को सिलेबस स्टार्ट करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हम लोग दूसरे क्लासेस में नहीं देख सकते हैं, कि हम लोग कैसे ये करेंगे, कोप अप करेंगे सब्जेक्ट के साथ, या फिर कैसे हम लोग बेसिक के स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाना चालू करते दे आर इन लाइक सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, टेस्ट कंडक्ट करना है। नो, वी आर इन, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, यू शुड लर्न, यू शुड नॉट मग अप दी थिंग्स। वहां पे 2-2, 2.5-3 लाख रुपए आप कोचिंग क्लासेस में भरते हो, पर जाके पता चलता है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। देन आफ्टरवर्ड्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे बिगर इंस्टीट्यूट्स है, उनके बच्चे भी आज मेरे पास पढ़ रहे हैं, दे आर स्कोरिंग वेरी वेरी वेल इन दिस एग्जाम्स। रिसेंटली अभी तक तो एग्जाम नहीं हुआ है, पर मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, ही हैज सिक्योर्ड एन एडमिशन इन केजी सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मुंबई। एक्चुअली दे हैव कंडक्टेड देयर ओन एग्जाम, जेई होने के पहले उन लोगों ने खुद का एग्जाम कंडक्ट कर लिया था और उसमें उसको एडमिशन मिला है। आई हैव taught him, he was
in a renowned institute. I will not take the name. He was in a renowned institute in 11th standard, but he left that institute in 12th. He was with us, like Prashant sir, I and Abhijit sir have taught him PCM, and then he is now into a good college, we can say. So हम लोग 1-to-1 पढ़ाते हैं, पर्सनलाइज ट्यूशन लेते हैं, जिससे बहुत सारा बेनिफिट्स है. हम लोग खुद आपको पेपर सेंड करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, हम लोग आपका प्रोग्रेस मैप करेंगे, ट्रैक करेंगे, हम लोग आपको पेपर सॉल्व करने के लिए देंगे, और कैसे चलता है, पैटर्न क्या होता है, धीरे धीरे समझाएंगे, एंड एट योर पेस. दैट इज द मेन थिंग. ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग दिस एनीवेयर, ऑनलाइन भी नहीं और दूसरे क्लासेस में भी नहीं मिलेगा. At your pace, only at your pace. This is the strategy of our learning or of our teaching, we can say. इंटरेस्टिंग है. यू कैन सी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग कि डायरेक्ट हम लोग को खाली 1-to-1 सीखना है, अकेले में कोई भी बोर्ड रहने दो. इफ यू आर अप्रोचिंग लाइक मुझे इंजीनियरिंग नहीं जाना है, मुझे नीट जाना है, तो भी हम लोग पढ़ाएंगे. आपको इंजीनियरिंग नहीं जाना है, नीट भी नहीं जाना है, आपको बीएससी करना है, तो भी क्लास लगाना है, खाली 12th स्टैंडर्ड के लिए क्लास लगाना है, तो भी हम लोग पढ़ाएंगे. एनीथिंग वी कैन teach. If any engineering subject is there from mechanical branch, if anyone is approaching in mechanical branch, then also I can teach. I take subjects from mechanical branch as well as I take physics. These are the two subjects that these are the two branches that I have been taking since last 10 years, we can say. So if anyone is interested in this type of coaching, जिसको 1-to-1 पढ़ना है या फिर 2-3 लोगों के साथ पढ़ना है, then we can say they can directly message me on WhatsApp. आपको एक पोस्टर से शेयर करेंगे हम लोग WhatsApp ग्रुप में, वहाँ पे नंबर रहेगा, उसके ऊपर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. कोई डाउट्स रहेगा तो आप वो भी मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग IIT JEE गेट एनीथिंग, द सेशन दैट वी हैव कंडक्टेड टुडे, उसके बारे में कोई भी डाउट रहेगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्लान कैसे बनाना है, वो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन दैट नंबर. दैट इज माय पर्सनलाइज्ड नंबर. हाँ, अभी स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा है तो रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है मेरे एंड से, बट श्योरली आई विल लेट है रिप्लाई पर. हम 100% रिप्लाई तो मैं देता ही हूँ सबको, चाहे वो डाउट हो चाहे वो किसी बारे में हो, मैं तो 100% आपको रिवर्ट बैक करूंगा ही. नाउ इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस या फिर कोई पॉइंट मेरे से रह गया है जो आपको चाहिए, वो आप मुझे बता दो. And also very thanks to Upajivika for, we can say, they have given us a chance or a platform to meet here. They have given us a chance for me to guide the students who are interested in getting into IIT JEE. मतलब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है JEE मेंस क्या है, JEE एडवांस क्या है. उसके लिए उपजीविका फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है हम लोग के लिए, that they are providing us a platform to talk directly. No we can say any मतलब बोलने no middleman in between. Directly a professor and students are talking because of Samir sir. I am very thank of you. I am thanking you for this. You have done a great job. You have connected the students and professor. Again, thanks a lot.